Hello students. Now we are going to see the second question of exercise 3.4, first bit of it. That is word problems are there, just we are going to see for that. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. But most of the times if they exist ये mention ही नहीं करेंगे, most of the times तो exist ही करेगा, solutions नहीं आते, उसके conditions रहते हैं, solution है या नहीं तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्टली ऐसा देते नहीं. ओके, फर्स्ट वन, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, लास्ट में क्या व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो डेफिनेटली अपन को फ्रैक्शन फाइंड करना. लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई, एक्स न्यूमरेटर है और वाई डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन का, राइट. अब बाय फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू कुछ भी लिख सकते हैं. इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर है अपना x, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर and subtract 1 from denominator means denominator y है, y में से 1, then the fraction reduces to 1, तो fraction क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x plus 1 is equals to y minus 1, तो x minus y is equals to minus 2 plus 1. On transposing it will be minus 1 minus 1 minus 1, it becomes minus 2. Give this equation number 1 by second condition. See the second statement now. It becomes 1 by 2 means fraction becomes 1 by 2. The fraction becomes 1 by 2 when becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator. If we 1 to denominator, only add 1 to denominator. Sometimes ये only mention नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन में बोल देगी इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2, तब समझ लेना न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं करने, राइट. तो दैट्स वाई x अपॉन वाई प्लस 1. इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1. गॉट द सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1 by 2 मतलब 1 by 2 होगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना. तो दिस बिकम्स 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. Equation number 2. Equation number 2. Now we are going to solve these two equations. Now we are using elimination method क्योंकि elimination से related exercise है, तो ऐसे एग्जाम में कोई कंडीशन नहीं रहती कि by which method we have to solve this. When we get these two equations, जब ये दो equations मिलते हैं तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं. एग्जाम में कोई कंडीशनल वर्ड प्रॉब्लम, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा कोई मेंशन नहीं करती सॉल्व बाय elimination method और particular कोई मेथड मेंशन नहीं करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. वी आर गोइंग टू एलिमिनेट y हियर. तो जस्ट साइन देखो माइनस वाई माइनस वाई, तो साइन तो क्या है आपको पहले बताया था, डिफरेंट साइन एडिशन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ये दो कंसेप्ट याद रखना, ठीक है. नाउ सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 minus equation 2, तो x minus y is equals to minus 2 and 2x minus y is equals to 1. Just subtract करें, leave some space for it for changing the sign. Now y get cancelled, minus 2x or plus x, it will become minus 1 is equals to minus 3, x becomes 3. Okay, now put x is equals to 3 in equation, any one of the equation you can substitute. In one we are substituting. After substituting x is equals to 3 in 1, 3 minus y is equals to minus 2. जब अपन ट्रांसपोज करते तो ये y की साइन जो माइनस है वो लिखना भूल जाते हैं, बी केयरफुल. 3 की साइन यहाँ प्लस है, तो एक्चुअल ट्रांसपोज करने के बाद इट बिकम्स minus 3. So it becomes y becomes minus y is equals to minus 5, it becomes 5. So y की value 5. Therefore the required fraction, fraction is equals to x by y. What is the value of x here? X is 3 and y is 5. Therefore the required fraction will be 3 by 5. Got it?
व्हाट द क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स देंगे आपको जो क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड रहते मोस्टली, जो अंडरस्टूड रहते अपने को पहले से पता है, तो उसमें सिर्फ आपको एक ही स्टेटमेंट देते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस में उनको दो दो स्टेटमेंट देने, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू गेट द one value of x, one value of y. If we add 1 to numerator and if we subtract 1 from denominator, the fraction reduces to 1. Second condition में क्या बताया था, second condition में if we add only 1 to denominator, right, then it becomes 1 by 2. Cross multiply, after transposing we'll get this, solve these two, get the value of x, get the value of y. ऐसे नहीं लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम से, therefore the solution is x is equals to 3, y is equals to 5. इस टाइप से नहीं, आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो वर्डिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड करना मस्ट रहता है, राइट, अदरवाइज इसके मार्क्स आप लूज कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड बिट ऑफ दैट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 2 persons. तो अपन equations related to ये जैसे let the present age of one person is Nuri. Nuri be x years, and that of second कौन person है, that is Sonu, be y years. By first condition, या from first condition. First condition 5 years ago. अगर 5 years ago बताया तो डेफिनेटली दोनों के 5 years बैक, राइट. 5 years ago, बिफोर 5 years ऐसा बोले तो दोनों के 5 years के एजेस कंसिडर करना. अब नूरी के 5 years ago x - 5 एज होगा और सोनू का y - 5. जब तक मेंशन नहीं कर देगी नूरी 5 years ago नूरीज एज was 2 times सोनूज प्रेजेंट एज, तब तक y ने मतलब y मेंशन मत करो, प्रेजेंट जब तक मेंशन नहीं करो. अदरवाइज 5 years के एगो के एजेस लेना, ठीक है, जब मेंशन नहीं रहते. तो नूरी was 5 years ago तो कंसिडर कर दिया. नूरी was, ये इज इक्वल्स टू अपन was रीड करेंगे, was thrice as old as, 3 times, thrice means what, 3 times as old as Sonu. Solve it. Now x, open it, this bracket 3y minus 15. This implies x minus 3y is equals to minus 10. Is equals to minus 10. Give this equation number 1. From second condition. From second condition, what is that second condition? 10 years later, after 10 years, 10 years later, 10 years hence. hence का भी मतलब later ही होता है, after मतलब 10 साल बाद में. तो 10 years ago नूरी का भी 10 years ago का निकाल लेना और सोनू का भी 10 years का के बाद का एज निकालना. नूरी विल बी, अब यहाँ इज इक्वल टू अपन यहाँ विल बी, यहाँ वॉज बोले तो पास्ट में था ना, will be twice as old as Sonu. Twice means 2 times करना, twice as old as Sonu. तो x plus 10 is equals to 2y plus 20. ये ओपन करते हो केयरफुल, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ 2y लिख के रखते, प्लस 10 ही लिखते हैं, तो केयरफुल वो लिखना. तो x minus 2y is equals to 10. How you got 10? After transposing this 10 that side, subtract हो जाएगा, you will get that. Okay. Now this we have got these two equations. Now x minus 3y is equals to minus 10, x minus 2y is equals to 10. We are going to solve these two equations. Now see which variable we are going to eliminate. Definitely x eliminate करेंगे और x की साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस है क्योंकि कोएफिशिएंट 1 1 है. we are going to eliminate x only. Means दोनों की सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ये कंसेप्ट याद रखो. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज x के दोनों कोएफिशिएंट्स सेम है. तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट नाउ, चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट करना, x गेट कैंसल, प्लस 2y माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 20. थोड़ा केयरफुल रहो,
ऐसे क्वेश्चंस में, एज वाले क्वेश्चंस, डिजिट वाले क्वेश्चंस में निगेटिव नहीं आएंगे एक्स एंड वाई के वैल्यूज, राइट। एजेस, कॉस्ट, रुपीस कुछ भी निकालते मतलब, तो ये वाई एक्स की वैल्यूज नेगेटिव नहीं आते। कभी कभी कैलकुलेशन में आ जाते तब भी लिख देते फाइनल देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज -4 रुपीज़, दैट विल डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा ना। अपने को पता होना चाहिए कि माइनस ऐसे कोई क्वेश्चन से कर देते हैं तो केयरफुल है। अब पुट y इज इक्वल्स टू -20 इन इक्वेशन वन ऑफ द इक्वेशन, इजी सेकेंड लगता है तो सेकेंड में पुट करो, तो x -2 in bracket 20 that is equals to 10. This implies x is equals to 50 because 20 into 2 40 minus 40 on transposing it will be 10 plus 40 that will be 50. So therefore लिखना लास्ट में x किसके लिए सपोज किया था, नूरी के एज के लिए, therefore नूरीज percentage is equals to x is equals to 50 years and Sonu's percentage is equals to y is equals to 20 years. उसको बॉक्स में ऐसे हाईलाइट, देयरफॉर बाहर लिखना, ऐसे बॉक्स में आप हाईलाइट करके रखना। ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट, ये स्टेप्स को मार्क्स रहते बोर्ड में, तो केयरफुल रहो कि कैलकुलेशंस यहाँ पे पहले चेक किए जाते कि ये एक्यूरेट इक्वेशंस बन रहे क्या आपके। अगर ये एक्यूरेट नहीं रहा तो फिर ये चेकिंग डेफिनेटली करेंगे आपका कि एक्यूरेसी उससे दिख जाएगी। ओके, now we are going to see the third bit of that second question. Third bit, some digit वाले क्वेश्चन आ गए। देखो डिजिट वाले क्वेश्चन में पहले भी बताया, सब एक एग्जांपल है 32 नंबर। अपन एक्सप्रेस कैसे करते, 32 को यूनिट्स प्लेस पे इसलिए 1 से एंड टेंस प्लेस पे इसको 3 जो है टेंस प्लेस पे इसलिए 10 से, इसलिए अपन 30 + 2 इसलिए वी हैव गॉट 32। लेकिन अपने को 2 डिजिट नंबर तो अपन एक्स वाई तो नहीं लिख सकते, यूनिट्स प्लेस का डिजिट वाई, इसको अपन यूनिट्स प्लेस का डिजिट अगर सपोज अपन ने वाई कंसिडर किया, टेंस प्लेस का डिजिट एक्स कंसिडर किया, तो यहाँ पे वी कैन कंसिडर दिस एज एक्स एंड दिस एज वाई। तो दैट्स वाई 2 डिजिट नंबर अपन वेरिएबल के इन टर्म्स में जब लिखते हैं तो इट बिकम्स 10x + y या 10y + x, डिपेंड्स अपॉन टू विच डिजिट यू आर सपोजिंग। आप उसके लिए क्या सपोज कर रहे हो, डिजिट यूनिट्स प्लेस के डिजिट के लिए y सपोज किया, इसलिए यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे y आ गया। अदरवाइज यहाँ पे अगर तुमने x लिया यहाँ y लिया तो भी तो 10y + x आता था। और रिवर्स्ड क्या आएगा फिर इसका, 10y + x रिवर्स नंबर आएगा। जैसे 32 है उसका रिवर्स नंबर मीन्स 23 आफ्टर इंटरचेंजिंग द digits. Got it? Now we are going to see that also. Now let the 2 digit number be 10x + y. This is 2 digit number. याद रखना ये टेंस प्लेस का डिजिट है और ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट है। हाउ वी हैव गॉट, नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, मैंने अभी शॉर्टली आपको साइड में एक्सप्लेन करके बताया, अब डायरेक्ट लिखे तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। डिजिट्स बोले तो एक्स एंड वाई, एंड आई विल रीड दैट क्वेश्चन। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो डिजिट्स अपने पास एक्स एंड वाई है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आई हैव लेफ्ट सम प्लेस फॉर राइटिंग वन स्टेटमेंट। आपको एक इंटरचेंजिंग डिजिट वाला भी एक स्टेटमेंट लिखना है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज दैट कंडीशन, राइट एंड कंप्लीट नाउ। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, what is that condition? The sum of the digits of 2 digit number is, sum of the digit means x and y, these are the 2 digits, is 9। 32 में 2 डिजिट था, 3 डिजिट था। वेरिएबल में अपन ऐसा नहीं लिख सकते एक्स वाई, रॉन्ग हो जाता है एक्स वाई, ठीक है। तो वेरिएबल के इन टर्म्स में लेते हैं डिजिट्स अपन, तो उसको 10x + y लिखना पड़ेगा। दिस इज 2 डिजिट नंबर है x + y। अब फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन थोड़ा सा केयरफुली रीड कर देखो। also मतलब सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से 9 times दिस नंबर, दिस मीन्स ओरिजिनल, द नंबर, दिस नंबर बोला कि समझ लेना ओरिजिनल नंबर रहता हो, राइट। 9 times दिस नंबर मीन्स 9 × x + y, राइट। इज बोला तो इज इक्वल्स टू 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बोलेंगे या ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द ऑर्डर। मतलब देयरफॉर द रिवर्स डिजिट, यहाँ पे रिवर्स नंबर भी निकालो,
या द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर, या रिवर्स नंबर लिख दो, देयरफॉर द रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, वेरिएबल के इंटर्म्स में एक उल्टा कर देना, यूनिट्स प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस पे 32 को मैंने जैसे बताया था आपको 23, वैसे वेरिएबल जब लेते हैं अपन डिजिट्स के लिए तो ये वैसे टाइप से लिखना, तो रिवर्स नंबर मीन्स 10y प्लस x, 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल रहता है, 9 टाइम्स द नंबर भी बोला होता तो ओरिजिनल है, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained after reversing the digits, after interchanging the digits, ऐसा भी बोला तो भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको ओपन करो, it will be 90x plus 9y that is equals to 20y plus 2x, this is equals to, ट्रांसपोज करो 2x, 90 minus 2x 88x माइनस सब्ट्रैक्ट करो 11y दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। 11 से आप डिवाइड कर सकते, सिंप्लीफाई कर लेना, इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। याद रखना डिजिट वाले क्वेश्चंस में x एंड y की वैल्यू 0 आ सकती है, 0 से लेकर 9 डिजिट तक कोई भी आंसर आ सकता है, बट -1 -2 फ्रैक्शन में आ रहे ये आ ही नहीं सकते, तो कैलकुलेशंस चेक करो फिर अगर आ ही रहे तो। This is the first equation and this is the second equation. Okay, now we are going to solve which variable, हमने सुटेबल कौन सा y एलिमिनेट करेंगे अपन, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 एंड डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन इज सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन इज एडिशन, ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, we are going to add these two equations now, x plus y is equals to 9 and 8x minus y is equals to 0, cancel these two, it will be 9x is equals to 9, then x is equals to 1, we have got the x 1 आ गया, अब put x is equals to 1 in equation 1 में, इजी है, इसमें पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट करो सेम आंसर आते हैं। 1 plus y is equals to 9, this implies y is equals to that is 8। अब नंबर फाइंड द नंबर मीन्स आपको ये ओरिजिनल नंबर फाइंड करना रहता है, रिवर्स कभी फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो देयरफॉर द टू डिजिट या रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, अपने पास था 10x प्लस वाई, आप x की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, तो 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस y की वैल्यू 8 है, तो 10 प्लस 8 that is equals to 18, therefore the 2 digit number that is equals to 18, फाइनल आंसर बॉक्स में हाईलाइट कर देना, ओके। दिस completes bit number 3. Now 2 questions left, I will explain these two, I will form the equation, so you can try for getting the values of x and y, okay. Bit number 4, Meena went to bank to withdraw 2000 rupees, 2000 rupees बैंक से विड्रॉ करना है मीना, राइट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, अब जो डिनोमिनेशन शी इज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स, मतलब उसको जो 2000 रुपीज जो चाहिए वो 50 रुपीज के नोट्स में और 100 रुपीज के नोट्स में रिक्वायर्ड है, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है 100 रुपीज, वी डोंट नो द हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, तो x कंसिडर करो, इसके लिए y कंसिडर करो, लेट 50 रुपीज नोट्स बी x and 100 rupees notes be y, right. From first condition
फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन टोटल कैश विड्रॉ कितने विड्रॉ किए उसने 2000 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वन नोट इज 50 है तो एक्स नोट्स की 50x हो जाएगी. तो 50x प्लस 100y दैट इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 50. तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40. 50 से डिवाइड कर सिंप्लीफाई कर लेना. ऐसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस मत करो, बिग इक्वेशंस नहीं रखना. बट 2000 विड्रॉ किया 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट्स के इन टर्म्स में चाहिए उसको. तो x एंड y नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी x एंड 100 रुपीज़ नोट्स बी y. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन वी गॉट दिस इक्वेशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स अपन ने x एंड y लिए थे ना. टोटल नोट्स मीन्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड कंडीशन टोटल नोट जो है मतलब 50 रुपीज़ के नोट्स एंड 100 रुपीज़ के मिला के टोटल 25. yes, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल मीन्स x प्लस वाई नोट्स हैं ये इज इक्वल टू 25. चलो अपन इसको सॉल्व ही कर देते. लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क दे दूंगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट वेरिएबल x हियर. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, subtract these two equation. तो x plus 2y is equals to 40, x plus y is equals to 25. We are subtracting, x get cancelled, y is equals to 15. Put y is equals to 15 in equation सेकेंड में पुट कर देते. तो x y के प्लेस पे 15 सब्सटीट्यूट कर दो. 15 इज इक्वल्स टू 25, देन x इज इक्वल्स टू 10. देयरफॉर 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10 and 100 rupees notes is equals to y is equals to 15. In this way you can get the two answers, x and y. Got it? Okay. Last question of this exercise. Fifth question. Lending library has a fixed charge for first 3 days. लाइब्रेरी चार्ज में कभी अपने कोई लाइब्रेरी में कुछ क्या बोलते हैं अपन उसको एडमिशन ये बोलते हैं अपन बुक्स वगैरह परचेस करने जाते तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन वो सब करना पड़ता है. तो फर्स्ट 2-3 डेज़ के लिए जैसे सपोज आपने रीडिंग करने के लिए बुक्स लेके गए तो 2-3 डेज़ पे कोई चार्ज नहीं रहता है. लेकिन एक्स्ट्रा डेज 3 डेज समझो कंडीशन रखी कि 3 डेज तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट रीड कर सकते बुक्स. यू कैन कीप विथ यू. लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा डेज आए तो उस पर चार्ज लगेगा. राइट, ऐसे 2 कंडीशन याद है. फिक्स्ड एंड that is a charge per day, extra charge per day. I will read that question completely. Lending library has a fixed charge for first 3 days. Fixed charge. अब हम fixed charge x consider करते हैं, right? Fixed charge first 3 days and an additional charge for each day thereafter. अब जैसे अपने extra charge per day y consider कर. Suppose 7 days उसने बुक रख लिया अपने पास तो इसमें 3 डेज तो फ्री है. रिमेनिंग कितने 4 डेज. ये 4 डेज पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ये. दैट मीन्स 4y फिक्स्ड. इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. वो फिक्स चार्ज है, वो कोई चेंज नहीं होता. 3 डेज में वो फिक्स चार्ज है. तो x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड 27 रुपीज़. उसने 27 रुपीज़ पे किया फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज. मैंने बताया था ना 7 डेज अगर उसने बुक रखा तो 3 डेज तो फ्री है. उस पर एक्स्ट्रा चार्ज मतलब फिक्स चार्ज लगेगा. उसको x कंसिडर कर लो. जो एक्स्ट्रा 4 डेज उसने रख लिया उस पर चार्ज लगेगा एक 1 डे का y रुपीज़. तो एक्स्ट्रा कितने डेज हुए 4 डेज की. 3 डेज तो फ्री है. फ्री मतलब फिक्स्ड चार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा तो वो फिक्स्ड लगेगा. और जो रिमेनिंग है वो ये चार्ज लगेगा. ठीक है. एंड दिस वन. तो इक्वेशन जो है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. अब सेकेंड कंडीशन जो दी है
while Suzy paid ₹21 रुपीज़ पे किया फॉर कीपिंग फॉर 5 डेज. अब 5 डेज है तो इसको स्प्लिट करो 3 + 2 एक्स्ट्रा डेज है ना. इस पे तो मतलब फिक्स चार्ज है, 3 डेज फ्री रीड करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. लेकिन वो मंथली जो चार्जेस रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, वो तो देना ही पड़ेगा. तो ये 2 × y, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा डेज है पर डे y, तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस 2y विल बी द एक्स्ट्रा चार्ज. जस्ट इफ वी सॉल्व इट, आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट द सॉल्यूशन. ओरली भी अपन सॉल्व करेंगे. तो ऐसे 2 इक्वेशन. तो लेट क्या करना, तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज. तो लेट करते हो, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x and the extra charge per day and the extra charge per day be ₹y. तो 7 डेज मतलब 3 डेज फ्री था. एक्स्ट्रा वो मंथली चार्ज जो रहता है वो फिक्स चार्ज रहता है, वो तो देना ही पड़ेगा. तो वो चार्ज तो है, प्लस 7 में से 3 डेज फ्री रीडिंग करना है, तो 4 डेज के लिए चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है. पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है y, तो 4y, तो x + 4y 27, x + 2y 21. सॉल्व अगर ओरली ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 2y = 6, तो y = 3. मतलब एक्स्ट्रा चार्ज पर डे ₹3 लगेगा. और ये पुट कर देना यहाँ. If we put here 3 4 is 12, transpose करो 27 - 12 15, तो x will be, it will come 15. Okay, therefore the fixed charge will be ₹15 and last में wordings में लिखना therefore fixed charge is equals to ₹15 and extra charge per day that is equals to ₹3. Got it? Okay, this completes our exercise number 3.4. इसका सब्स्टिट्यूशन पार्ट से भी आप करके देख सकते हैं. ओके, नाउ वन मोर मेथड लेफ्ट, that is cross multiplication method. We'll see in the next video. Thank you.